Okay, Preetham is entering. Okay, so it seems that we are live. Let's check. So I will Preetham has check. also come. Okay, we are already live, it seems. Yeah. I just joined. Just give me a minute. Yeah, Rahul is also coming in a moment, so it's fine. Yeah. It's nice that Shraddha, you are awake because मुझे लग रहा था कि तुम सुबह 4 बजे तक जाग रही थी मेरी तरह, तो अभी यहाँ पर तो 8 बजे हैं. लग रहा है आईज ना एकदम स्वेल हो गई. Yeah. was trying really hard कि ये ना दिखे but क्या कर सकते हैं. Okay, राहुल भी आ गए. अरे प्रीतम ब्लैक होल से निकल आओ, बाद में ब्लैक होल डिस्कस करेंगे. So Rahul, we are live already, huh? Okay. No, it's fine. It's fine. Just letting you know because you are not here. कितने audience है? So we go on Facebook at the moment. 2 people are watching already. Really? Rahul is so surprised. No, I'm like so overwhelmed. Yeah, but I mean, it's difficult because we have a small group at the moment. India Science Theatre is growing, and But I think science we did not theatre advertise group में it. तो काफी लोग हैं. Yeah, but still, you know, लोग तो काफी हैं, पर उनके पास कितना टाइम है एग्जैक्टली इसी टाइम पर लाइव आने का, और वो भी सैटरडे और मॉर्निंग है एक्चुअली. बहुत लोगों के जॉब भी होता है सैटरडे को, स्कूल भी होता है बच्चों का, आधी छुट्टी होती है. वो तो पता नहीं, बट मेरी बहन ने भयंकर प्रमोट किया है वैसे सबको बोल के. Nice. My sister. That's nice. सबको बोल के रखा है. प्रीतम भट्टाचार्य. मेरा नाम एडिट कर दो. मैं कर रहा हूँ. हाय. कर दिया. ओके. हेलो प्रीतम. अभी हमारे पास 2 मिनट हैं. ठीक है. और 2 मिनट में शुरू करते हैं. Sure. ये काफी लैग है. There is a lag on Facebook I can see because मैं अभी जो कर रहा हूँ वो मुझे थोड़ी देर बाद दिख रहा है. हाँ. No, that's true, of course. में लैग तो थोड़ा रहेगा. I wasn't aware. I was just looking at myself and I was like, I'm looking back in time. I mean, like, मैं अभी. Everything at the speed we of can light. mention this actually. Like, You this can is actually one way notice to this. do It's time very travel. funny. Time travel. Yeah. This reminds me, I watch these IPL matches on Hotstar. My father watches on actual cable. So when we are discussing, like, he's always giving away the plot. अरे इस बॉल में छक्का मार दिया. Stop! I am still not there yet. I'm 2 minutes behind you. पूरा excitement खत्म कर दिया. हाँ, this happens actually. हम लोग भी कभी-कभी कुछ WhatsApp ग्रुप्स पर चैट कर रहे होते हैं, जब मैच चल रहा होता है, सेम होता है. There are some spoilers always. Yes. Who are ahead of everyone. So we have already 6 people watching. Yeah. And Tarun is writing, "Hi, Sama jobless too." वैसे where can I see this live status? Like, who are? So you have to go to Facebook. India हाँ. Science Theatre में we are live. View stream on Facebook. Hey तरुण, हम लोग को रैग कर देना पूरा तरुण. हाँ. No, आज बारी है राहुल की रैग होने की. So we have decided to ask many questions from Rahul because he is apparently the expert on cosmology. Apparently. Why apparently? Come on. In cosmology, there is a lot of difference between what is apparent and what is real. See, he knows. Yeah. No. See, on a serious note, we will always have some experts in this panel who are in advanced stages of their career regarding some topic, and then some of us will be. कुछ लोग, मैं हिंदी में थोड़ा सा बोलता हूँ अभी क्योंकि 8 तो बज गए हैं, तो थोड़ा शुरू भी करना है. हाँ. तो कुछ लोग हम में से ऐसे भी होंगे पैनल में जो या तो एकदम एंटायरली डिफरेंट फील्ड में हैं, या फिर मतलब उस फील्ड में, मतलब जैसे फिजिसिस्ट हैं पर जैसे कॉस्मोलॉजिस्ट नहीं है. जैसे मैं एक्सपेरिमेंटलिस्ट हूँ, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट हूँ, पर राहुल थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है, तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिल सकता है. तो इस तरह का हमारा कुछ ये
डिस्कशन रहेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों का भी जो हमारे साथ देख रहे हैं। तो तरुण लिख रहे हैं, इट्स एन एब्सोल्युटली ग्रेट इनिशिएटिव, ग्लैड टू सी यू डूइंग दिस। थैंक यू तरुण, थैंक्स अ लॉट फॉर योर अप्रिशिएशन, इट मैटर्स अ लॉट टू अस। तो इंडिया साइंस थिएटर का हमारा हमेशा से यही मकसद रहा है, जब से ये शुरू हुआ है, कि हम साइंस की एक्साइटमेंट को जनरल पब्लिक तक लेके जाएं। तो हमारा जो अभी पहला शो था, जिसका एक सीजन अभी खत्म भी हुआ है, पूछो जरा पूछो, उसके बाद हमने एक नया इनिशिएटिव ये शुरू किया जिसमें हम कुछ साइंटिस्ट जिस तरह से हम आपस में बात करते हैं ड्यूरिंग टी ब्रेक्स एंड सो ऑन, उस तरह से यहाँ पर जूम पर आकर आपके साथ, आपके सामने हम उसी तरह किसी टॉपिक पर बात करें। हमें उम्मीद है कि आपको भी हमारी डिस्कशन के थ्रू काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो डिस्कशन का हमेशा से, जैसे मैं बात कर रहा था, कि इस तरह से परफॉर्मा रहेगा कि देयर विल बी एन एक्सपर्ट ऑन सम टॉपिक उसी तरह से चुने जाएंगे कि हमारे में एटलीस्ट एक एक्सपर्ट जरूर हो, ताकि अगर हम कुछ उसमें मिस्टेक कर रहे हैं डिस्कशन के टाइम तो उसको करेक्ट किया जा सके। नॉट एपरेंट, एक्चुअल एक्सपर्ट, Really? द एक्चुअल रियल एक्सपर्ट। सो हमारे साथ आज के जो पैनल में जो जुड़े हुए हैं, पहले हम उनकी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी ले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं राहुल निगम जी से। राहुल, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जरूर। तो हेलो एवरीवन, द व्यूअर्स, नाउ अब 7 व्यूअर्स हैं। तो मैं राहुल निगम, मैं अभी बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिजिक्स में। मेरे इंटरेस्ट तो कई है, जैसे कि कॉस्मोलॉजी, ब्लैक होल्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स इन जनरल और ग्रेविटेशनल वेव, और इन्हीं पे काम करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मुझे करीबन 7-8 साल हो गए हैं बिट्स में। उसके पहले मैंने पीएचडी अपनी करी थी टीआईएफआर से। मैं आशीष का सीनियर था वहाँ पे। 4-5 साल सीनियर थे? हाँ, 4 साल मेरे ख्याल वहाँ सीनियर 4 था। साल। और मैंने स्ट्रिंग थ्योरी में पीएचडी की थी, बट उसके बाद फिर मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी। मैंने 4 साल में इंडस्ट्री में था, फाइनेंस इंडस्ट्री में, एंड देन आई केम हियर बिट्स। और काफी समय हो गया बिट्स में। वेरी वर्सेटाइल का है। सो पहले स्ट्रिंग थियरिस्ट, उसके बाद कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंड सो ऑन, क्वाइट वर्सेटाइल। सो इट्स गुड टू हैव यू हियर राहुल। I think we will have a lot of episodes together. Okay, आप कुछ और कहना चाहेंगे? कि because we have to keep the introduction brief. हाँ, नहीं, ठीक है, let's move on next. Okay, so maybe मैं खुद के बारे में अभी बता देता हूँ। मैं एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट हूँ। मैंने टीआईएफआर में पीएचडी की थी, जैसे राहुल ने बताया। मैं उनका जूनियर था 4 साल, और मैंने एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर में पीएचडी की थी। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट हूँ, बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। उसके बाद मैंने फ्रांस में पोस्टडॉक की, और अभी मैं जर्मनी में पोस्टडॉक कर रहा हूँ पिछले कुछ 6 साल से यहाँ पर। और मेरा इंटरेस्ट जो है, मैं बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड्स में जो अर्थ पर अवेलेबल हैं, उनमें सेमीकंडक्टर सैंपल्स को रख के उन पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ। चलिए आगे हम श्रद्धा के पास जाते हैं। हाँ, थोड़ा फ्रेंच में दर्शकों को ग्रीट कर दीजिए। बोंजूर, सावा। ओके, सो अभी श्रद्धा के पास चलते हैं। श्रद्धा। It's Shraddha or Shraddha? Shraddha. Okay, so we have 2 Shraddhas actually, but one is Shraddha. So we will call try to differentiate with names, with the accent. Okay, let's go to Shraddha Sharma. One is Miss Bose and one is Sharma ji ki beti. Yes. Okay, मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है, and I am a physics enthusiast, and मैं आशीष की स्टूडेंट भी हूँ, and we love discussing physics. And apart from that, मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में। So मैंने बीटेक किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, and then I joined IT sector. And what actually we do, we work on applications, provide solutions to the organization. Okay, thanks Shraddha, good to have you here. So idea ये है कि डाइवर्स एक पैनल रहेगा। अगर हम कोई चीज को बहुत एडवांस्ड वर्ड्स में भी बोलने की कोशिश करेंगे तो हमें टोकने के लिए कोई ना कोई रहेगा। जैसे श्रद्धा एक स्टूडेंट है अभी, तो हमें वो टोक सकती है अगर हम कुछ एडवांस्ड वर्ड्स यूज करेंगे। ओके, लेट्स गो टू प्रीतम भट्टाचार्य। प्रीतम जी। हाय गाइस, मेरा नाम प्रीतम है, शायद नाम तो सुना होगा। तो मैं अभी
मेरा डायलॉग तुमने मार दी। हाँ, तो तुमने मिस कर दी तो मैं क्या करूँ? तो मैं अभी बिट्स पिलानी गोवा कैंपस पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इधर, पिछले 1.5 साल से हूँ। तो उसके पहले मैंने आईआईटी खड़गपुर से अपना पीएचडी सबमिट किया, अभी तक डिफेंड नहीं किया पर शायद जल्दी हो जाए। आपकी भी दुआ चाहिए इसलिए। और उसके पहले मैं भी एक्चुअली टीआईएफआर में था, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया और वहाँ पे मैं आशीष के जूनियर था। और वैसे हमारा जो मेलजोल था मोस्टली नॉन एकेडमिक था, थोड़ा म्यूजिक इन सब में हम दोनों का काफी। जैसे नाम पता चला प्रीतम है, मुझे लगा काफी कुछ सीखने को मिलेगा म्यूजिक के हाँ। रिलेटेड। तो हाँ, तो वो काफी अच्छे दिन थे। और तो अब तो मेरा जो डोमेन है, तो मैं थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ। तो मेरा जो काम है मेनली एल्गोरिदम्स डिजाइन करना है, और खास जैसे एक टाइप का एल्गोरिदम होता है जिसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम्स। तो वो एल्गोरिदम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए एल्गोरिदम डिजाइन करना और उसका रन टाइम एनालिसिस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब Thanks, Preetham. Thanks. Good to have you here because you are now not from physics background, so it will always be nice in our discussions. So let's मैं तो go to रोक दूंगा, Shraddha. ज्यादा कुछ हो जाए मेरे लिए तो मैं हाँ, जरूर। बढ़िया बढ़िया. Okay, let's go to Shraddha, Miss Bose. जी, hello everyone. I'm Shraddha. I'm doing my PhD in biophysics and molecular biology, but biophysics बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है because यहाँ पे इतने सारे अच्छे physicists हैं। और तुम्हारे में बायो नहीं है कोई तो हमें शर्म आएगी biology अगर मेरा आप कुछ field बताएंगे। domain completely different है। I come from a biology background. तो मैं अपना PhD फ्राई यूनिवर्सिटी बर्लिन और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से कर रही हूँ। इससे पहले मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है। एंड यहाँ आज आप सबके साथ जुड़ने में बहुत ही मजा आ रहा है। और हाँ, आशीष हमारा कॉमन लिंक है, तो मैं उनसे यहीं पे मिली एंड हम भी म्यूजिक वगैरह थोड़ा बहुत करने लगे थे। बट हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि साइंस ये इंटरेस्टिंग है यहाँ कि मैंने अभी रियलाइज किया मैं यहाँ पर कॉमन लिंक हूँ फिलहाल। आप में से कुछ लोग अभी पहली बार एक तरह से मिल रहे हैं। ओके, तो हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं फिलहाल। इट्स गुड टू हैव यू श्रद्धा बिकॉज दिस विल हेल्प अस अ लॉट टू कीप थिंग्स एक्सेसिबल फॉर द पब्लिक बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम द फिजिक्स बैकग्राउंड। अच्छा, तो आज हम ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में हमने सोचा है कि हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो एक छोटी सी गेम खेलते हैं। इससे पहले रूल्स क्या होंगे, मैं मॉडरेट कर रहा हूं, तो मैं एक पैनलिस्ट का नाम लूंगा और वो पैनलिस्ट बताएगा कि उनका फेवरेट ऑब्जेक्ट कौन सा है या किस टाइप का है। ब्रह्मांड में कई टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी हैं, कई ऑब्जेक्ट्स भी हैं, और उसका कोई एक खास पॉइंट जो आपको पता हो, एक अट्रैक्टिव एक्साइटिंग चीज उसके बारे में, एक फैक्ट, वो बताइए साथ में। एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैनलिस्ट एंड आफ्टर दैट वी ओपन द डिस्कशन। तो इस तरह से ओपनिंग रिमार्क्स रखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं राहुल के पास। आपका फेवरेट ऑब्जेक्ट कौन सा? अच्छा, एक सेकेंड, इससे पहले ऑडियंस को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमें देख रहे हैं वो पार्टिसिपेट करिए हमारे साथ साथ। जो यहाँ पर बातचीत चल रही है, फील फ्री टू राइट व्हाटएवर यू वांट इन द चैट बॉक्स। ओके, तो चलते हैं राहुल जी के पास। राहुल जी, आपका फेवरेट ऑब्जेक्ट कौन सा है? I'll just start with the easiest one and one जो मुझे सही में अच्छा, it provides all the warmth। हमारा सूरज। ओके, तो सूरज की बात कर रहे हो? नहीं, हाँ, मैं सूरज की अब ऐसे मत बोलना, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये सबसे करीबी स्टार है। अगर सूरज नहीं होता तो हमारी लाइफ भी नहीं होती, अर्थ पे लाइफ भी नहीं होती। एंड लाइफ सस्टेन करने के लिए भी जो सूरज की जो प्रॉपर्टीज है वो जस्ट सही है। उसका टेम्परेचर, साइज, एज, ओके, एग्जैक्टली सही है कि यहाँ पे लाइफ, हम इंटेलिजेंट लाइफ यहाँ पे बच सके अर्थ पे।
नहीं मतलब टेम्परेचर उसका सही है इतनी डिस्टेंस पे 6000 distance, केल्विन हाँ। इतनी डिस्टेंस के लिए सही है। इस डिस्टेंस हाँ। और अच्छा एक सवाल पूछूंगा अच्छा कोई बता सकता है कि सूरज बेसिकली सूरज अलग अलग वेवलेंथ कोई भी स्टार हर वेवलेंथ पे हाँ लाइट एमिट करता है ठीक है तो उसकी इंटेंसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है किस कलर पे वो एमिट कर रहा है तो सूरज किस वेवलेंथ पे किस कलर पे सबसे ज्यादा उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है तो ग्रीन anyone? ग्रीन नहीं, ग्रीन अभी जवाब मत देना, आई थिंक थोड़ा ठीक है मौका दो। ओके हमें मैं तो थोड़ा सूरज ग्रीन नहीं दिखता है सूरज हाँ। तो ग्रीन नहीं दिखता है नहीं मैं बाकी पैनलिस्ट से भी पूछते हैं उनका क्या आंसर रहेगा। मुझे और तो लगता है हमें- जो हमारे दिखता है viewers वही भी है, बता तो सकते हैं। कुछ येलो या ऑरेंज के आसपास कुछ होगा अच्छा शायद। येलो ऑरेंज। श्रद्धा आपको हाँ। क्या लगता है? मुझे लगता कौन है शायद रेड हो। ओके शायद रेड हो। Red हो। और श्रद्धा ऑरेंज आई गेस। ऑरेंज। हमें बेसिकली सबसे पहले तो यही लगेगा किसी को भी आप भैया सूरज किस कलर पे एमिट करता है एनीवन वुड से आई मीन ऑरेंज और येलो बट या आई मीन हमारे डॉक्टर साहब आशीष जी सही सही थे या आई न्यू दैट। मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ग्रीन कलर ओके या सन बट इट्स स्पेक्ट्रम जस्ट कि स्पीक्स वो अराउंड ग्रीन कलर ग्रीन कलर बाकी सबसे मिक्स हो करके एंड थोड़ा स्कैटर हो करके यहाँ पे अर्थ एटमॉस्फेयर से हम उसको परसीव करते हैं इट बिकम्स रेड एंड ऑरेंज यस यस समथिंग या वेरी नाइस और अगर आप स्पेस में जाके देखोगे तो किस कलर का दिखेगा वाइट वाइट। वाइट ये फर्स्ट बेंचर है आई मीन फर्स्ट बेंचर ये गलत बात है। हाँ, सारे हाँ, आंसर भी दे नहीं रहे पर हैं। मत नहीं पर अभी कीजिए। क्या भरोसा कि मेरा आंसर ठीक है या नहीं। चलो आपसे भी पूछते हैं आपको क्या लग रहा है कैसा दिखेगा। नहीं, आज श्रद्धा के लिए आशीष वाइस एक्सपर्ट है, ये राहुल एक्सपर्ट है, तो ये वाइस एक्सपर्ट है। चलो ठीक है या इट्स वाइट आई मीन इफ यू गो टू द ओह स्पेस तो राहुल एग्रीज। एंड लुक एट द सन इट वुड लुक वाइट अगर Okay. देख पाते तो ना, आंखें जल नहीं जाएगा। वो तो है स्पेस में तुम स्पेस में भी नहीं जा रहे हो आई मीन दैट हाँ वो भी है विलिंग स्पेस में अगर आप जाओगे तो काफी मतलब क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट और हाई फ्रीक्वेंसी लाइट काफी ज्यादा है लो वेवलेंथ वाली स्पेस में जो कि हमारी ओजोन लेयर उसको कट कर देती है फिलहाल हम अर्थ में हैं। तो स्पेस पे जाओगे तो और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्किन डिसीजेस एंड सो ऑन स्किन बहुत Cosmic सारी बचपन से सोलर सिस्टम की फोटोज में हमेशा येलो सन ही दिखता है मतलब। तो हमें यहाँ से तो येलो ही दिखता है ना हाँ तो चलो श्रद्धा से पूछते हैं येलो क्यों दिखता है। हाँ मुझ पे आ गया क्योंकि वो अभी जैसे राहुल ने भी बताया कि एक्चुअली में जब तक वो यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो जैसे सनराइज के टाइम पे रेड होता है रेलिक्स स्कैटरिंग होती है एंड उसके बाद धीरे धीरे जैसे उसका पोजीशन चेंज होता जाता है वो दूर होता जाता है तो वो येलो मतलब उसमें किस वेवलेंथ के साथ एटमॉस्फेयर मतलब क्या परसीव हो रहा है उसके बेसिस पे उसका कलर हमें दिखता है तो येलो वाला वेवलेंथ। नहीं आप सही बोल रहे हो मतलब जहां तक मुझे समझ है क्योंकि जब सनराइज हो रहा होता है उस टाइम पर एटमॉस्फेयर बहुत थिक है क्योंकि आपको जो रेज है बहुत दूर तक प्रोपेगेट कर रही है एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट करके आपकी तरफ पहुंच रही हैं तो उस टाइम पर बहुत सारे कलर्स जो कि शॉर्ट वेवलेंथ के कलर्स हैं जैसे कि पर्पल हो गया जैसे कि ब्लू हो गया इवन ग्रीन यू नो ये सब स्कैटर कर जाते हैं क्योंकि रेले स्कैटरिंग नाम का एक फिनोमिना है जिसमें जो रेज हैं जितनी शॉर्ट वेवलेंथ की होंगी उतनी ज्यादा स्कैटर करेंगी तो लॉन्ग वेवलेंथ वाली बच जाती हैं जो हमारी आंखों में पहुंच जाती हैं और वो होती हैं रेडिश। इसी तरह जब सन ऊपर पहुंचता है तो धीरे धीरे वो वाली स्कैटरिंग जो है वो सिर्फ ब्लू की तरफ शिफ्ट कर जाती है तो ग्रीन और ऑरेंज और रेड ये हमारी तक पहुंचने शुरू हो जाते हैं उनका मिला के कुछ येलो सा नजर आता है। बट अगर आप एटमॉस्फेयर के भी ऊपर चले जाएं तो जैसे राहुल बता रहे थे कि तो एक स्पेक्ट्रम जो सन का है वो ऑलमोस्ट आपको फ्लैट सा है हमारे विजिबल रीजन में ऑलमोस्ट फ्लैट सा तो तीनों कलर जो है जैसे आरबीजी का सम बोलते हैं ना रेड ब्लू और ग्रीन का सम वो देके हमें व्हाइट सा एक अपीयरेंस देता है। तो मतलब
जैसे राहुल ने बताया कि ग्रीन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है पर इट्स नॉट वेरी अप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं है ऐसे. अच्छा. या एग्जैक्टली. ओके. सो प्लस स्कैटरिंग हो जाती है. यस, बाय द वे दैट इज आल्सो द रीजन स्कैटरिंग के कि हमें स्काई ब्लू दिखता है. Exactly. एग्जैक्टली. तो वो लाइट जो हमारी तरफ आ रही थी उसमें से ब्लू स्कैटर होके हाँ. स्काई की तरफ चली गई एक तरह से, तो हमें स्काई अच्छा, ब्लू. I have a question. हाँ वो थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, बट ये जो आप अगर नॉर्दर्न लाइट्स आपको दिखते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, लाइक टुवर्ड्स द पोल्स, वो क्यों दिखते हैं? वो भी क्या स्कैटरिंग फैक्टर है? तो उसका आंसर मैं तो या राहुल देंगे? मैं बता देता हूँ. बताओ तो बताओ. जैसे मैंने अभी हम लोगों ने वर्ड यूज किया था कॉस्मिक रेज. सो सन से और बैकग्राउंड से भी, यूनिवर्स से भी, अलग अलग जगह से एक्चुअली स्पेस वैक्यूम नहीं है प्योरली. वहाँ पे काफी चार्ज पार्टिकल्स हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं. तो सन की से भी हमारी तरफ सिर्फ लाइट नहीं आती है, चार्ज पार्टिकल्स भी आते हैं जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं. दीज आर बेसिकली हैवी आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स. सोलर विंड मोस्टली प्रोटॉन्स होते हैं ना, सोलर विंड. तो ये बेसिकली, और तो अर्थ की तरफ आ रहे हैं. ओके, यहाँ से सन से दे आर कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ. अब अर्थ की एक फील्ड होती है, ऑल ऑफ अस नो दैट, जो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में ऐसे यू कैन ड्रॉ लाइक दैट. मैग्नेटिक फील्ड. हाँ जी. अब ये जो सोलर पार्टिकल्स आ रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, दे गेट ट्रैप्ड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड. वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ साथ जाते हैं. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ होते होते दे रीच द एटमॉस्फेयर एट द पोल्स. नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आते हैं, एंड देयर वो एटमॉस्फेयर को हिट करते हैं. एंड व्हेन दे हिट द एटमॉस्फेयर, दे एक्चुअली गिव एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स. जो हमारे जो एटम है, एटमॉस्फेयर के जो एटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनको एक्साइट कर देते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स देन दे गो अप, एंड देन व्हेन दे कम जंप बैक, then they emit this light which we call aurora borealis. Okay. Very interesting. और इससे ये भी क्लियर हो गया कि क्यों सिर्फ पोल्स पे It is दिखते also हैं. very beautiful. It is. It's quite beautiful. In fact, different gases में जो ये एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिफरेंट कलर्स देती है. आई थिंक ऑक्सीजन का जैसे आई थिंक ग्रीन कलर है, देखना पड़ेगा. नाइट्रोजन का रेडिश था, पिंकिश सा था, अब देखना पड़ेगा. तो डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट कलर है तो सर. शायद साउथ के उधर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं ना, ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, और इधर नॉर्थ पोल में बोरियलिस. बोरियलिस. श्रद्धा कुछ बोल रही थी. एक क्वेश्चन है कि स्पेस का एक्चुअल कलर ब्लैक है, मतलब ऐसे हमेशा बोले जाते, मतलब जो पिक्चर्स में दिखता है ब्लैक है, तो इज दैट ट्रू? हाँ, अगर आप आईएसएस पे जाओगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, या एटमॉस्फेयर के पार जाओगे, तो आपको ब्लैक नजर आएगा, क्योंकि कोई लाइट स्कैटर नहीं कर रही है जो स्पेस को, स्काई को कलर दे रही है. तो ब्लैक नजर आता है हमेशा से ब्लैक ही था हमेशा. एक्चुअली आप अगर फॉरगेट स्पेस, अगर आप मार्स या किसी प्लैनेट पे जाते जिसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, तो पूरा स्काई ब्लैक ही दिखेगा, और सन ब्लैक दिखेगा, एक्सेप्ट कि वो आपको सन चमकता हुआ दिखेगा बल्ब की तरह, बट एटमॉस्फेयर में मतलब आपको स्काई की तरफ सब ब्लैक दिखेगा. ये कितनी फैसिनेटिंग चीज है. जरा इमेजिन करके देखो कि आप एक जस्ट सेंटर में एक चीज है जो आपको चमक रही है, बाकी अगर दूसरी ओर देखोगे स्टार्स भी नजर आएंगे, बिकॉज नाउ दे आर नॉट ऑब्स्क्योर्ड, राइट? दिखता है, जैसे हाँ? बताते हैं वो दिखता है, वैसे दिखेगा सन. हाँ. यार दिस इज वेरी फैसिनेटिंग. अच्छा चलो डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. हम आगे जाते हैं श्रद्धा के पास. श्रद्धा, आपका फेवरेट ऑब्जेक्ट कौन सा है यूनिवर्स में? किस टाइप का है? या फिर I would have to say because हम लोग स्टार्स की बात कर ही रहे थे, तो मुझे रेड जायंट्स बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं. रेड मतलब जायंट्स वो होते हैं बहुत बड़े, बट उनकी मतलब उनमें they are not that hot, they are relatively cold. ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है. बट तो उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ एक कोई फैक्ट अगर आपको पता हो जो फैसिनेटिंग हो. मुझे यही फैसिनेटिंग लगता है कि
कि वो काफी कूल वो है। होता भी इतना बड़ा है बहुत cool है वो। So cool. इसीलिए But प्रीतम the शायद रेड टी शर्ट fascinating पहन के fact बैठे हैं। is compared to the high mass stars, ये जो because red giants low mass stars से form होते हैं, but ये मतलब billions of years के लिए they survive as compared to high mass stars, and that is really interesting. So हमारा जो सन है जब वो अपनी डेथ के पास पहुंचेगा शायद आज से कुछ 500 करोड़ साल के बाद लगभग, तो वो एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा। जी। Yeah. और And- वो एक हाँ Yeah, उसकी आउटर शेल, राहुल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, yeah, you're fine. उसकी जो आउटर शेल है वो एक्सपैंड करेगी और उसकी एक्सपैंड करते करते मार्स के ऑर्बिट को भी नॉट मार्स सॉरी वीनस के ऑर्बिट को भी क्रॉस कर लेगी और अर्थ के आसपास पहुंच जाएगी। तो अर्थ विल ऑलमोस्ट लाइक वेपोराइज, लाइक इट विल बी वेरी वेरी हॉट। But It'll that get is engulfed. the interesting thing, इवन like अर्थ क्या वेपराइज कर जाएगी, बिकॉज ये रेड जायंट वुड बी अ लिटिल कूलर, राइट? या और बट अर्थ की ऑर्बिट भी तो चेंज हो जाएगी ना तब तक। नो बट Like, कितना कूलर because ये of the क्वेश्चन है Actually ना। देखो अभी जो सन का जो सरफेस टेम्परेचर है इट्स अराउंड 6000 केल्विन, राइट? और जब वो बढ़ जाएगा इट विल बी अराउंड 3000 केल्विन, सो नॉट दैट उतना भी कोल्ड नहीं होगा। इट विल बी स्टिल वेरी हॉट। plus it will come very close, quite closer to us, right? I mean, so But Shraddha, yeah. the question टेम्परेचर कम क्यों होगा? टेम्परेचर कम क्यों होगा? बिकॉज फ्यूजन तो हो रहा है ना। फ्यूजन बहुत कम हो जाता है एंड प्लस वो साइज में बड़ा हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स है, तुमने सेम एनर्जी को जब बड़े साइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो Okay. टेम्परेचर कम होगा ना। एवरेज टेम्परेचर। हाँ, और फ्यूजन जैसे राहुल बता रहे हैं वो बहुत कम हो जाता है। तो अभी ये तो सिर्फ start है। रेड जायंट स्टार में ही होता है और बाकी स्टार्स में नहीं होता। नहीं, बाकी सब स्टार्स में बहुत कुछ होता है। रेड स्टार्स भी fusion- होते हैं जो ठंडे होते हैं। देयर आर मेनी स्टार्स व्हिच आर लो टेम्परेचर। Yeah. फ्यूजन कम क्यों हो जाएगा? बिकॉज द मटेरियल्स आर डिप्लीटेड, इज इट? या इट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स लाइफ। उसकी लाइफ खत्म होने वाली है, तो ज्यादातर हाइड्रोजन वो ऑलरेडी बर्न आउट कर चुका है। इनफैक्ट या सो अभी वो हीलियम थोड़ा जला रहा है और थोड़ा हाइड्रोजन जला रहा है। और In कोई fact, रिजर्व अच्छी टैंक पे elements- रन कर रहा है। हमें रेड जायंट दिखता भी है नेकेड आइज से। इफ यू गो आउट ऑन अ क्लियर स्काई, मेरे ख्याल से शहर से भी दिख जाएगा। एनी बहुत इजीली, एक बड़ी पॉपुलर कॉन्स्टिलेशन में है। या इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्स्टलेशन। एनी गेसेस? अभी मैं नहीं बताऊंगा। द हंटर, ओरायन। ओरायन। इनफैक्ट बड़ा पॉपुलर स्टार है, उस पे एक मूवी भी है, मेरी बड़ी फेवरेट मूवी है वो। हाँ, वही मैं बोल Betelgeuse। रहा था, वो स्टार का नाम Betelgeuse। बीटलज्यूस है क्या? बीटलजूस। या मूवी देखना, ये बहुत अच्छी मूवी है, पर ये स्टार्स के बारे में नहीं है। अच्छा, एक मूवी में तो स्टार्स होते ही है, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ एग्जैक्टली, दे आर हमारे यहाँ पर जैसे राहुल जी सबसे बड़े स्टार हैं, ऐसे मूवी में भी होते हैं। दिस बीटलजूस को तुम लोग जाके देखना, एंड बीटलजूस के पास में ही देयर इज अ नाइस नेबुला व्हिच इज कॉल्ड ओरायन नेबुला। यस इट्स लाइक अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स पैदा हो रहे हैं। यस, तो जो ओरायन है उसके कॉर्नर पे बीटलजूस है, पर बीच में बेल्ट है 3 स्टार्स की। उस बेल्ट के एकदम साथ में ओरायन नेबुला है, पर ऐसे नहीं देख सकते नंगी आंखों से, थोड़ी सी एक टेलीस्कोप चाहिए। You will see a fuzzy patch. नंगी आंखों से मुझे नहीं नजर दिख जाता है, दिख आएगा। जाता से मुश्किल है ना शायद। ज्यादा लेकिन light ऐसे पर- भी you can see the fuzzy patch. That's interesting. I will try harder. नहीं दिखता है, मतलब need to be in हमारा कैंपस थोड़ा बाहर है, so I mean maybe that's the reason. But मैं पहले भी देखता था, we could see. Oh, that's interesting. नहीं, मैं नॉर्मली मैं जब टेलीस्कोप से भी देखने की कोशिश करता हूँ, okay, I have a binoculars here, which has a decently large objective of the order of 2 inches and more, a little bit more, 6 centimeter. उसमें बहुत बढ़िया चीजें दिख जाती हैं, और ये ओरायन नेबुला का पैच नजर आता है, बट कोई स्टार वहां पर नहीं मुझे नजर आता है वहां पर। ये दिक्कत है, Patch, स्टार नहीं नजर आता है कोई। star नहीं दिखते। अच्छा, एक क्विक रिलेटेड क्वेश्चन, ये रेड जायंट डिस्कशन से रिलेटेड, जैसे ये श्रद्धा के क्वेश्चन से मुझे दिमाग में आया कि जब ये सन
शायद रेड जाइंट हो जाएगा, इट एक्सपैंड्स, कम्स मच क्लोजर टू अर्थ। तो उस टाइम पे अर्थ का ऑर्बिट क्या वो भी थोड़ा खींच जाएगा सन की तरफ, या इट विल जस्ट स्पीड अप? आइडियली अगर देखा जाए तो नहीं चेंज होना चाहिए, बिकॉज द सेंटर ऑफ मास इज स्टिल सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द सन। Yes. और भी कई फैक्टर्स होते हैं, बिकॉज प्लाज्मा ज्यादा आएगा, देयर विल बी मोर, आई डोंट नो, आई मीन काफी और हाइड्रोडायनामिकल फैक्टर्स होंगे। ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, कैलकुलेशन बहुत सारे पैरामीटर्स, अननोन पैरामीटर्स, बट आइडियली यस, आइडियली इट डजंट मैटर कि आपका इतना या इतना, इफ यू आर आउटसाइड, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेन्स द सेम। Exactly, that was my question. Gravitational force will be the same? आइडियली सेम रहता है, बट उस समय कैसा रहेगा कुछ और चेंजेस, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है ना, because राहुल? Assuming uniform density. Venus, and there is some sort of, I don't know, I mean, so it might affect the orbit. नहीं, पर राहुल थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि अभी Tidal. सन इज ऑलमोस्ट लाइक ए पॉइंट लाइक Yeah. ऑब्जेक्ट, हाफ ए Yeah. डिग्री उसका सब्सटेंशन है हमारी आई पर। Yes. फिर अगर बहुत बड़ा हो जाएगा, वी हैव टू Yes. इंटीग्रेट ऑन द स्मॉल वही पार्ट्स मैं कह ऑफ रहा दिस। था, थोड़ा टाइडल फोर्सेस टाइप के आ जाएंगे, आई मीन साइडवर्ड फोर्स एंड ऑल। नहीं, टोटल ओवरऑल ग्रेविटी भी थोड़ी चेंज होनी चाहिए ना, और नॉट, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द सन फॉर एग्जांपल गो अवे फ्रॉम दैट मैं वही पॉइंट कह लाइक रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। आइडियली अगर फिजिक्स की प्रॉब्लम स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे करते हो तो इट विल नॉट चेंज, बट yes, I think if it comes very close, maybe there is one has to work. Okay, Tarun is writing that mass loss is not that much. So thanks, Tarun. Red giant. So essentially, gravity, I think Tarun wants to say that gravity mostly stays the same than gravitational pull on Earth, because mass loss is not that much. Okay, हमारे viewers और भी अच्छे comments कुछ लिख रहे हैं। इंदु लिख रही है, great to learn these topics, and in childhood physics seemed boring to her, but it shouldn't be like that. Yeah. And Manisha लिख रही है, great work. शुभम लिख रहे हैं, it's really great to listen to all of you experts, great initiative. पुनीति लिख रहे हैं, great. Thanks to all the viewers. आप कोई आपको क्वेश्चन भी है अगर हमारी डिस्कशन जो चल रही है उससे रिलेटेड, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, हम अपने पैनल में डिस्कस करेंगे उसको भी, आप जो चाहते हैं। और हाँ, हमारे अगले शोज के लिए भी, अगली एपिसोड्स के लिए भी जो आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, वो भी आप सजेशंस लिखिए, पार्टिसिपेट करते रहिए। अच्छा, तो मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ते हैं आज की डिस्कशन में। तो तीसरा, अभी प्रीतम जी के पास जाते हैं। प्रीतम जी, आपका फेवरेट ऑब्जेक्ट कौन सा है यूनिवर्स में? मेरा शायद फेवरेट ऑब्जेक्ट होगा पल्सर्स। ऐसा क्यों? एक तो पर्सनल रीजन है कि मेरा बाइक था पल्सर 180 तो वहां से मुझे पता चला कि ये, मतलब मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि ये नाम कहाँ से है, व्हाट डज इट मीन। तो वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे पता चला जाके कि ये एक्चुअली एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। फिर मैं थोड़ा सा उसके बारे में विकिपीडिया एक्सेट्रा गूगल किया, तो पता चला काफी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, बहुत पावरफुल ऑब्जेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहता है उनका। कुछ शायद I don't remember the exact number, some I don't know, 10⁻⁶ that of the earth, huh? शायद few billion times that of Yeah, the earth, something like that, billion times that of the earth. और भी जो इंटरेस्टिंग है वो पल्सेट करता है, आई मीन वहां से जो नाम का ओरिजिन है शायद, वो उसका इंटेंसिटी थोड़ा ऐसे फ्लक्चुएट करता है, सेंड्स आउट पल्सेस बेसिकली। वो आपको पता है क्यों पल्सेस क्यों सेंड आउट करता है? वो मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया, समथिंग अबाउट मिसअलाइनमेंट ऑफ द रोटेशनल एक्सिस एंड द मैग्नेटिक एक्सिस, बट आई डोंट रियली नो व्हाट, उसके लिए एक्सपर्ट के पास राहुल से पूछते हैं, चलो। हाँ, कि बेसिकली जो इट्स अर्थ की भी जो रोटेशनल एक्सिस है और जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस है, दे आर नॉट एग्जैक्ट, आई मीन द पोल्स दे आर नॉट एग्जैक्टली सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। थोड़ा कितना डिफरेंस है राहुल एंगल में? थिंक अराउंड 20 एग्जैक्टली नंबर नहीं है 23 डिग्री। मैं इसीलिए राहुल को तंग कर रहा हूँ, राहुल नंबर में मुश्किल हो जाती है। नहीं दोनों में, ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस में 23 डिग्री का फर्क है। मुझे तो लगा 23 डिग्री तो वो है, इट्स टिल्टेड एट 23 डिग्री, दोनों 23 डिग्री है। If I know it, if I have been learning it correctly, there is a 23.5 degree mismatch. 23.5 is the tilt of the rotational axis. With respect to what? But हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, with respect to the this plane, the ecliptic plane. orbital, okay. Orbital plane. No, I think ये 23 ही था।
मैं नहीं, चेक कर हाँ, तो सकता हूँ that is क्विकली, क्लोज आप होगा बताइए। लाइक 22 That- या 23 ऐसे या बट जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो उनके पोल्स तो चेंज भी हो जाते हैं ना, वी नो दिस राइट, दे गो अपसाइड डाउन एंड ऑल दोस थिंग, सो वो दैट हैज सम डिफरेंट एंगल इफ आई एम करेक्ट, ओके। तो सिमिलरली अ न्यूट्रॉन स्टार, if its rotational axis is like this, its magnetic axis could be like this, ठीक है। वैसे अभी ये रोटेट कर, अब जैसे ऐसे रोटेट कर रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड उसकी, आर यू गेटिंग इट राइट, ऐसे जा रहा है ना, तो इसकी ये चेंज हो रही है, इट्स रोटेटिंग अराउंड, ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लाइंस ऐसे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूमेंगी ऐसे ऐसे जैसे वॉबल करते हैं। तो उससे क्या होगा, नहीं फ्लैशेस क्यों नजर आएंगी? हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग ही मेरे ख्याल से उसका जो सिग्नल्स, जो आई मीन इट सेंड्स आउट सम रेडियो सिग्नल, सम हाई, राइट, वो दैट इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस। तो वो फील्ड जब हमारे तरफ मतलब अर्थ के तरफ फेसिंग होगा तभी हमको दिखेगा, तब हम देखते हैं, तब हमें दिखता है, so it will go away, then again it will come back, it will go away, it will again come ऑलमोस्ट back। लाइक अ लाइट हाउस। नहीं बट हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं या क्या देखते हैं, वो फ्लैश कहाँ से देखो आता है? मैग्नेटिक फील्ड, वही मैं कह रहा हूँ, उस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इट आल्सो रेडिएट्स बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स आर ट्रैवलिंग अलोंग दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। So this बाहर is the निकल रहे हैं। same principle like ये जो ऑरोरा के बारे में हम बात कर रहे थे ना, वो उसका उल्टा। पार्टिकल्स हमेशा वो मैग्नेटिक लाइंस के बराबर ही आएगा। उसका उल्टा, as आशीष said, it is somewhat like उसका उल्टा। उल्टा, बाहर हाँ, निकल रहे हैं। it comes out along, हाँ, okay। By the way, तरुण is writing। एक्चुअली रोटेट करते हैं बट ऐसा लगता है कि ऑन ऑफ हो रहे हैं। हाँ, हाँ, लाइट हाउस की तरह। हम उसके Light साइड में house। आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर साइड में आते हैं, इट्स लाइक लाइट हाउस सॉर्ट ऑफ थिंग, या। That's a good तो idea. तरुण लिख रहे हैं कि the magnetic axis is tilted at an angle of 11.7 degrees with respect to rotational axis of Earth. Thanks Tarun, thanks a lot for your inputs. In fact, Tarun is like our expert for today, you know, for the panel. So it's very good to have him watching us. Very nice. And Like the third umpire, वो wrong decision करते तो वो exactly. बाहर से हमको correct कर देगा। So next time, I mean, there is some हम लोग एग्री नहीं कर रहे, disagreement, we'll just ask for। हाँ, तरुण रेफरल। Yeah, no, Tarun is the absolute reference of cosmology and astrophysics of India. So we are very lucky that he is appreciating us and he is watching us and so on. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा न्यूट्रॉन स्टार्स की बात ऑलरेडी होगी, पल्सर्स की बात होगी थोड़ी सी। तो अभी मेरे पास आते हैं, मेरा फेवरेट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं हाई मैग्नेटिक फील्ड्स में काम करता हूँ, तो मेरा फेवरेट ऑब्जेक्ट है मैग्नेटार। तो जैसे जो राहुल क्या बोल रहे हैं, क्या वाह वाह, मैं क्या बात है। Ashish is so obsessed with magnet everywhere. वो मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाले ऐसे हाँ, होते हैं। अंदर है ना attractive. एनिमल मैग्नेटिज्म। I hope not a repulsive part of the magnet, but नहीं, attractive part. Purely attractive। You will have both the parts ना, ऐसे नहीं होता। Okay, शिवानी शुरभी बोल रही हैं ब्लैक होल्स उनका फेवरेट ऑब्जेक्ट है। बट एनीवे, ओके, थैंक्स शिवानी। थोड़ा ब्लैक होल के बारे में अगर आप और लिखना चाहें तो और भी लिखिए। अच्छा, तो मैग्नेटार्स जो होते हैं वो इसेंशियली पल्सर्स जैसे ही हैं। ओके, इसेंशियली दे आर न्यूट्रॉन स्टार्स। ओके, लेट मी, आई एम जस्ट थ्रोइंग सम नेम्स। हाँ, मेरे को थोड़ा सा बोलना चाहिए कुछ कुछ क्या क्या चीजें हैं कि एक स्टार जब अपनी लाइफ के एंड में जाता है ना, तो एक स्टार का अगर मास, इनिशियल मास कुछ ऐसा हो कि वो 10 से लेके 40 के सोलर मासेस के बराबर हो, जो सन का भार है उसके 10 गुना या 40 गुना के बीच में अगर हो किसी स्टार का मास, तो वो उसके बीच में उसकी जब फ्यूजन रिएक्शन जो उसकी जो हो रही है, जो उसको एनर्जी दे रही है, वो जब खत्म हो जाती है ना, वो अपनी लाइफ के एंड में जाता है, तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। कि वो इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है कि इट्स लाइक ए बिग न्यूक्लियस। जैसे एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है ना, इट्स लाइक ए ह्यूज न्यूक्लियस जिसमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स हैं। मतलब वो बाहर वाली शेल्स अपनी फेंक देता है, उसको सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं, और अंदर जो कोर बच जाता है उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स बच जाते हैं, तो न्यूट्रॉन स्टार। एक्चुअली पल्सर जो होता है, आई थिंक ये भी एक न्यूट्रॉन स्टार ही होता है, और ये रोटेट करता है काफी तेज।
तो मैग्नेटार जो होते हैं these are also न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर से थोड़ा स्लो रोटेट करते हैं. जैसे पल्सर्स की रोटेशन जो होती है कुछ 10 हर्ट्स 10 टाइम पर सेकंड टिपिकली 10 टाइम रोटेट करते हैं. आप इमेजिन करिए बड़ी सी चीज है 10 टाइम पर सेकंड रोटेट कर रही है. इट्स मैडनिंग. तो ये जो मैग्नेटार्स होते हैं दे रोटेट अ बिट स्लोली, लाइक one time in like 10 seconds, one time in 5 or 10 seconds. But एक second, let me finish. Sure. And the point is कि इनका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेटार्स का, दिस इज रियली रियली ह्यूज, रियली रियली ह्यूज. जैसे प्रीतम ने बताया था कि अबाउट जो न्यूट्रॉन स्टार्स का मैग्नेटिक फील्ड अबाउट 1 बिलियन टाइम्स, 100 करोड़, 1 अरब गुना जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, या शायद इससे भी ज्यादा होगा, कुछ ऐसा नंबर. बट मैग्नेटार्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है इट्स लाइक 10⁻15 टाइम्स देन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट्स वेरी लो. मतलब एक यूनिट होता है गॉस. एक गॉस जो होता है बहुत छोटा यूनिट है. हमारे घर में जो चुंबक होती है ना, चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड कुछ 100 गॉस के आसपास, फ्रिज मैग्नेट वाला. हाँ, फ्रिज पे जो लगाते हैं काली वाली, उसके आसपास होता है. तो अर्थ का है जो एक गॉस से भी कम है. तो मतलब वो जस्ट मैग्नेटिक नीडल को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट जरूर कर सकती है, बट बहुत ज्यादा नहीं कर सकती. बट मैग्नेटार्स का बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड है. इट्स वेरी वेरी हाई. तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स. इनफैक्ट एक छोटा मैग्नेटार अगर आप अभी चांद जहां पड़ा है उसकी जगह पे रख देंगे तो धरती पर जितना डेटा हमने स्टोर कर रखा है ना, जहां जहां भी मैग्नेटिक ड्राइव्स में, सारा उड़ जाएगा. इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है. यहाँ पर भी उसका इतना इफेक्ट होगा. हाँ प्रीतम, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, ये आपने वो न्यूट्रॉन स्टार के बारे में इन जनरल जो बताया, मतलब द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटार्स एंड पल्सर्स, तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आया दिमाग में कि एक स्टार के जो लाइफ साइकिल है तो उसमें मतलब मैग्नेटार और पल्सर ये कंप्लीटली ऑलरेडी डाइवर्ज्ड है, या मतलब वन कैन फॉलो द अदर? बिकॉज जैसे कि आप बोल रहे हो कि पल्सर रोटेट्स वेरी फास्ट, बट शायद वो धीरे धीरे स्लो डाउन करेगा. कैन इट बिकम अ मैग्नेटार आफ्टरवर्ड्स और इट ऑलरेडी डाइड? सो जितना मैं समझता हूँ, बाकी राहुल से जानेंगे अगर उनको ज्यादा पता होगा, नहीं तो तरुण तो है ही. तो जितना मैं समझता हूँ वो ऐसा है कि इनिशियल कंडीशंस जो है स्टार की, जब वो कॉम्पैक्ट हो रहा है इन इट्स ओन ग्रेविटेशनल पुल व्हाइल बिकमिंग ए न्यूट्रॉन स्टार, उस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास मैग्नेटार बनेगा या फिर आपके पास एक पल्सर बनेगा. मतलब उसका इनिशियल कितना एंगुलर मोमेंटम है एंड उसकी वहां पर क्या कंडीशंस. एक्चुअली देयर इज अ थियरी कॉल्ड मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स डायनेमो. So this theory it also tells कि हमारे अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक, अर्थ में जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो क्यों बनता है. तो एग्जैक्टली सेम थियरी का यूज जो होता है मैग्नेटार्स के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है. उसमें मतलब इनिशियल कंडीशंस क्या क्या है वो उस पे डिपेंड करता है, इतना मैं समझता हूँ. बट आई थिंक प्रीतम, a pulsar I don't think can become magnetar. It is not that. Yeah. That was his question. Okay, तो They फिर are different family. Right, so they have already like diverged in the Diverse, evolutionary. yeah, they went in diverged, yeah. तो फिर ये पल्सर, आई ऑल्सो रेड कि वो धीरे धीरे थोड़ा एनर्जी लूज करते, स्लो डाउन करते ये रोटेशन. तो फिर व्हाट डू दे एंड अप एज, ऐसे फिर वो क्या बनते हैं नेक्स्ट फेज? न्यूट्रॉन स्टार ही रहेगा, आई थिंक. इट इज नॉट. Yeah, I think पल्सेशन चला जाएगा, मतलब इट विल जस्ट बी अ sort of steady glowing. It will gradually lose energy, then just a lump of neutron, I believe. ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली. हाँ, लंप ऑफ न्यूट्रॉन्स तो रहेगा. आई थिंक वो कहीं नहीं जाने वाला. मे बी इट कीप्स ऑन अट्रैक्टिंग कॉस्मिक डस्ट. Maybe it keeps on attracting material from other objects around slowly, and in the end, everything becomes a black hole. No? Well, it depends. उतना ज़्यादा तो नहीं, but if it नहीं, मतलब long enough time. If it came out of a binary system, उसमें से एक neutron star बन गया है, then it happens that it keeps on sucking the matter from the other star, जो उसका binary partner है, and then it actually crosses the. नहीं, पर मैं राहुल, मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि in the end of the universe, ये नहीं पता कितना टाइम बाद, but what's the very end of the universe, everything will end up as a black hole. ऐसे मैं सुन रहा था, मैं गलत भी हो सकता हूँ. मैंने भी सुना है ये वाला चीज. Right? Because you know there is lots of dust around which is, मतलब अर्थ के ऊपर भी I don't know, रोज की
30 टन डस्ट अर्थ के ऊपर गिरती है स्पेस से, मैं भूल गया हूँ। अर्थ का भार रोज बढ़ता है थोड़ा सा, हाँ ये देखना है, कुछ कई कई टन Actually- भार अर्थ का रोज बढ़ता है। I think it depends on the cosmology also. अगर हमारा, अगर कितना जोर से expand, if the expansion accelerates and then there is a different form of death for the universe and अच्छा वो अलग चीज है। वो वही मैं कह रहा यूनिवर्स हूँ। के मॉडल्स हो गए। वही मैं कह रहा हूँ, so उस पे भी डिपेंड करता है। If हाँ। everything will turn into black hole or just हम्म, you are isolated from everything else. ओके, एक मनरीत, So that's what Tarun has written, that once it slows down, pulsars end up as boring dead neutron stars. okay, thanks Tarun, thanks. So that satisfies us with all the questions that are going around. And कि एक बार जब स्लो हो जाता है, yeah. न्यूट्रॉन And स्टार, डेड न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। Dead neutrons. वेरी Yeah, नाइस। Manjeet has also, I think, यस, commented. मैं भी राहुल से पूछता हूँ, मैं अगर राहुल को पता है, नहीं तो हम डिस्कस भी करेंगे। और कि न्यूट्रॉन स्टार्स की हम जब बात कर रहे हैं, पल्सर की बात कर रहे थे, उसमें जेट्स निकलते हैं ना, लाइट भी निकलती है और बहुत सारे पार्टिकल्स भी निकलते हैं और गामा रेज तक भी निकलती हैं, एक्स रेज निकलती हैं, राइट? तो ये क्यों निकलते हैं जेट्स, ये क्वेश्चन है। Good question. Okay, I can make a guess. Sort of. Like we were discussing, because it's rotating. Okay, and generally, usme I think it is surrounded with some material also. यस, Because एक्रीशन accretion disk. मतलब डिस्क, see, because neutron star कैसे बना था? It was formed after supernova explosion. Okay, उसने it threw out all its material बाहर की तरफ, and बीच का जो कोर था that becomes sort of neutron star, but it is still surrounded. वो जो पहले उसने जो फेंका था, that will gradually some of it वो धीरे-धीरे वापस उसके अंदर गिरने लग जाएगा, right? Now neutron star have a strong magnetic field, तो वो एक particular, again they will follow a particular trajectory वो magnetic field के हिसाब से, and when they do that, when suppose the magnetic field line आ रही है and the electron will basically go like this. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रॉन विल गो लाइक दिस, और अब साइक्लोट्रॉन मोशन, and when it does that, it will emit radiation. Okay, and that is basically what we see is the lighthouse effect. That's what we see. No, I think this is a very satisfactory answer, क्योंकि every particle when it's accelerating, every charged particle जब accelerate करता है तो वो radiation emit करता है। अभी मतलब कि जैसे राहुल ने बताया, बट आई थिंक एक और चीज है यहाँ पर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक्रीशन डिस्क जो है उसकी अपनी जो गैस, एक्रीशन डिस्क में अपना जो प्लाज्मा होता है, पहली बात तो वो बहुत गर्म होता है, मिलियन केल्विन एंड समथिंग लाइक दैट, बहुत गर्म, और बहुत तेज तेज भी घूमता है वो प्लाज्मा। मतलब उसकी स्पीड जो होती है काफी तेज हो सकती है, काफी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट भी पहुंच सकती है, और वहां पर भी चार्जेस बहुत तेज घूम रहे हैं, तो वो भी लाइट एमिट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। और इनफैक्ट उनमें से बहुत सारे चार्जेस, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब एक पल्सर इतना तेज घूम रहा है अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड उसका भी मतलब एक स्पाइरलिंग टाइप का एक पैटर्न सा बनता है, एंड देन इट टेक्स particles with us, and then these long jets are formed which can be like hundreds of thousands of light years long, you know, ये jets कितने लंबे हो सकते हैं। हमारी अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हमारी गैलेक्सी का डायमीटर कितना है? 800,000 light years. Around 100,000 light years if I am not wrong. तो उतना, मतलब जितना हमारे गैलेक्सी का डायमीटर है उतना एक जेट, उतना लंबा एक जेट। तो ये सोचने की बात है, मतलब ये इतने पावरफुल ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब। Well, Tarun has made an important point. Yes. Accretion disk जो उसमें गिरती है, can also fasten, उसकी rotational speed बढ़ा भी सकता है। अच्छा, because it is bringing in angular momentum, na? Yeah, exactly. Bringing in angular momentum, so that could lead to the neutron star spinning faster, and it can also happen to the binary red giant, जो अपनी जो red giant से जो binary partner है, उससे जो material उसमें गिर रहा है, it can actually bring in more angular momentum. So if you work out the math कि उसका mass भी बढ़ रहा है, angular momentum भी बढ़ रहा है, so depends कि कितना angular momentum अंदर ला रहा है. But there are cases कि जिसमें और तेजी से rotate करेगा. So it's like millisecond pulsar. So basically it is rotating 100 to 1000 times. Yeah, that's amazing. इतनी स्पीड पे एक ऑब्जेक्ट मान लो आप, मतलब 10 किलोमीटर अक्रॉस ऑब्जेक्ट है, वो 1000 बार पर सेकंड घूम रहा है, और वो भी सुपर डेंस है ना? सुपर डेंस as आप उसका एक टीस्पून, हाँ, I think that is what you're going to say.
If you take a teaspoon of neutron star, it's like 100 million tons, right? I don't, yeah, something like that. Very very heavy, 100 million Very, very tons heavy. or something. It's because it's just nucleus. मतलब हम एक एटम की जब बात करते हैं, एटम का सारा भार, मोस्ट ऑफ द भार न्यूक्लियस में है केंद्रित, हाँ, और बाकी बार बहुत सारी खाली स्पेस। अब कितनी खाली स्पेस है, मतलब अगर एक एटम का न्यूक्लियस से जो कुछ हजार अरब गुना ज्यादा खाली स्पेस एटम में है, मतलब इतनी छोटी जगह पर उससे ज्यादा खाली स्पेस, कई हजार अरब गुना खाली स्पेस है। तो वो अगर खाली स्पेस सारी की सारी निकाल दें बाद में, और सारे के जो बाकी बचा भार है उसको एक साथ मिला दें, तो वो अल्टीमेटली एक न्यूट्रॉन स्टार जैसा बनता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी अगर सारी खाली स्पेस निकाल दो आप एटम की, तो अंत में एक रेत का कण बचेगा। हाँ, जैसे हमारा भार अगर 70 किलो है, तो वो रेत का कण जो होगा छोटा सा, उसका भार 70 किलो होगा। ऐसे सोच के देखो, एंड अल्टीमेटली वो आप न्यूट्रॉन स्टार बना रहे हो, पूरे स्टार को ही आप ऐसे उस तरह एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना रहे हो। तो ये होता है बहुत ही पावरफुल चीज, ग्रेविटेशनली पावरफुल। अच्छा, तो अभी लास्ट में चलते हैं हम श्रद्धा के पास। मेरा फेवरेट स्टार मुझे लगता है काफी लोगों का होगा, ब्लैक होल। मतलब इसका तो नाम ही इतना मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग है, एंड इसका मतलब कि लाइट भी इसमें से एस्केप नहीं कर सकती। आई थिंक यूनिवर्स में सबसे हाईएस्ट स्पीड हम जिसका कंसीडर करते हैं वो भी अगर एस्केप नहीं कर सकती, सो आई थिंक ब्लैक होल्स काफी मिस्टीरियस लगते हैं। या ब्लैक होल्स की हम ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी बात कर भी रहे थे, पर आप इसके बारे में कमेंट में भी लिखा है कि दे आर लाइक ब्लैक होल। Yeah, black hole, I mean, it's something which, because it's the most powerful thing in the universe, most powerful. तो शायद इसलिए भी ये एक्साइट करता है लोगों को। इसमें से लाइट भी, जैसे बता रही है श्रद्धा, नहीं निकलती ब्लैक होल्स के राउंड से, कि जैसे आपने बताया कि न्यूट्रॉन स्टार में एक्रीशन डिस्क बनता है एंड जेट्स निकलते हैं, तो ब्लैक होल्स में भी सेम चीजें होती है, एक्रीशन डिस्क बनता है एंड आई थिंक क्वासर्स बोलते हैं जो जेट्स निकलते हैं। यस, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि ब्लैक होल्स में वैसे तो कुछ भी एस्केप नहीं कर सकते, लेकिन जब वो जो गैस और डस्ट पार्टिकल्स को जब अट्रैक्ट करता है, तो वो उसकी वजह से जो रेडिएशंस निकल रहे, आई मीन वो कैसे निकल रहे हैं, वो मतलब ब्लैक होल्स में, न्यूट्रॉन स्टार में इट्स एक्सप्लेनेबल, बट व्हाई इन ब्लैक होल्स? वो एक्चुअली होराइजन के बाहर से ही आता है। होराइजन के जो नहीं, पहले होराइजन बताओ क्या है। ब्लैक होल जो होता है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? सबसे पहले तो अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है जिसमें वी कैन से मास डेंसिटी हो गया। आई मीन यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ क्या है। बेसिकली जो स्पेस टाइप, जो स्पेस का जो फैब्रिक है, जो जैसे हम इमेजिन करते हैं स्पेस टाइम जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, वो वहाँ पे फट गया है। थिंक लाइक दैट। आई मीन ओके, यू डू नॉट नो वहाँ पे क्या है, हमें सिंगुलैरिटी का कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, तो नाउ अब सिंगुलैरिटी बैठती है ब्लैक होल के अंदर, बट ब्लैक होल को जब हम डिफाइन करते हैं, वो हम उसको डिफाइन करते हैं उसके इवेंट होराइजन से, व्हिच इज द आउटर कवरिंग, जो उसका बाहर का जो कपड़ा है। इमेजिनरी सरफेस है वो, ना? Well, it's an imaginary surface. There's nothing sitting there. There's no physical thing. But वो ऐसी सरफेस है कि हम अगर उसके उस पार चले गए, it's a point of no return essentially, कि आप वहां से वापस नहीं लौट सकते। कुछ भी, लाइट भी वापस नहीं लौट सकती, तो लाइट भी वापस नहीं आ सकती अगर अंदर घुस गए इवेंट होराइजन के। ऑल दो, मतलब मैं फिर भी एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सारा का सारा मास एक पॉइंट पर केंद्रित है, और ये जो इवेंट होराइजन की बात करें, दिस इज एन इमेजिनरी सरफेस। हाँ, अभी राहुल आप क्या बता रहे थे आगे? हाँ, तो मैं पहले श्रद्धा का वो आंसर कर दूं जो उसने पूछा था, जो ये जो लाइट रेडिएशन जो आ रहा है वो होराइजन के बाहर से ही आ रहा है, होराइजन के अंदर से नहीं आ रहा है। ओके, बाय डेफिनेशन होराइजन के अंदर से कुछ बाहर नहीं आ सकता। तो वो बाहर मतलब कि एक्रीशन डिस्क ऐसे ऐसे घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर इस तरह से घूम रही है, एग्जैक्टली सेम फिनोमेना आई थिंक एज न्यूट्रॉन स्टार्स, और ऐसे जेट निकलता है। हाँ, वो जो घूम रहा है वो मेटीरियली की धीरे धीरे घूमते घूमते अंदर की तरफ जा रहा है, वैसे अंदर चला जाएगा। It will get captured inside the horizon eventually. No, is it a disk also because of that kind of cyclotron motion that
वो जो Yeah, आप बता इधर पे रहे भी थे cyclotron- सिमिलर? अच्छा हाँ, so because जो accreting material है वो भी बहुत गर्म हो जाता है, it becomes like plasma and all those things. So I think somebody is also asking, is it possible for a black hole to eat an entire galaxy? Why not? Well, होता है. I mean, it's a long process. Very but long. यही होता है, quasars में वही हो रहा है basically. जो surrounding जो material है, वो धीरे-धीरे अंदर घुस रहा है, and once it goes inside, it's eaten. Okay? Yes. और ब्लैक होल धीरे-धीरे बड़ा भी होने लगता है, and more Hmm. मैसिव भी होने लगता है. तो जो हमारा जो मिल्की वे के जो सेंटर में जो ब्लैक होल बैठा हुआ है, it's a few billion solar masses. Oh, You know, this million, is huge. million. Wow. Billion, हाँ. So हमारे सन से मिलियन टू बिलियन टाइम्स उसका मास है. Hmm. So obviously इतने सारे सन्स खा चुका है, इतने सारे स्टार्स खा चुका है वो. And the But- process is still going on. हाँ, पर घबराइए नहीं, हमारे लाइफ टाइम में नहीं होगा ये कुछ भी. मुझसे भी ज्यादा खाता है. तुम तो रेड जायंट हो. नहीं मेरा अरे Cool star. आशीष यू फॉरगॉट मेरा TFR में निकनेम मिला था ना ब्लैक होल. उसके बाद अभी क्या हुआ, रेड जायंट कैसे बने? उल्टा प्रोसेस चल रहा है. उस टाइम ग्रेविटी ज्यादा था तो सब कुछ अंदर खींच लेता. अभी थोड़ा फैल रहा हूँ. तो आई थिंक आज की डिस्कशन को खत्म करने का टाइम भी आ रहा है. क्विकली कुछ देखते हैं कमेंट्स में क्या क्या आ रहा है. मनरीत लिख रही है, क्विकली बताएंगे. द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स डजंट वायलेट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हाई एंड हाउ? इनफैक्ट मनरीत, न्यूट्रॉन स्टार जो बनते हैं इट फॉर्म्स ड्यू टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि जब स्टार का जो कोर है वो मतलब खिंचता चला जाता है ग्रेविटी के अंदर, तो वो कब तक खींच सकता है? जब तक उसको एक बाहर की आउटवर्ड पुश ना मिले जो बैलेंस करे उस ग्रेविटी को. और वो पुश क्या कहां से मिलती है? वो मिलती है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से. उसका रीजन ये है कि देयर आर सम पार्टिकल्स कॉल्ड फर्मियंस, और एक लॉ ऑफ नेचर है वो ये कहता है कि फर्मियंस, जो दो फर्मियंस हैं, वो एक दूसरे की सेम स्पेस या सेम स्टेट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते. उनके बीच में एक रिपल्शन होगी जब वो एक दूसरे के पास आएंगे. तो इसी तरह से न्यूट्रॉन्स जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं, न्यूट्रॉन्स फर्मियंस हैं, तो वो रिपेल करते हैं ड्यू टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड देन दे मेक दिस मैटर, दिस मास ऑफ this object which is the neutron star, जो कि further अंदर collapse नहीं करता है. So this is the neutron star. So this does not violate Pauli exclusion principle. It in fact follows Pauli exclusion principle. नहीं, आशीष, I think maybe she wanted to know कि वो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट वो वाला था, मतलब. See, हाँ. I think because neutron star अगर नहीं बन रहा है तो white dwarf रहता है, which is supported by Pauli's exclusion principle applying to electrons. But जब ग्रेविटी ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? रिवर्स बीटा डीके. बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके न्यूट्रॉन बन जाते हैं. Yes. और फिर उसका जो डीजेनरेसी फोर्स है वो और ज्यादा है, which supports a neutron star. Yes. Okay. So I think this is clarified. Let's see. Tarun is writing its partner is a binary in a binary, assuming it has one. Okay, its partner is a binary. A less known fact is that almost most stars come as binaries. Oh, that's interesting कि almost बहुत सारे तारे, उनका हमेशा एक बाइनरी पार्टनर भी होता है, और दो तारों का सिस्टम होता है जो आपस में रोटेट करते हैं एक दूसरे के साथ साथ. हमारा सन है बस एक जो हैप्पी एंड क्या कहते हैं? Can sun turn Single into a and black hole? Single. Okay, Tarun has already replied कि sun is not that massive that it will turn into a black hole. In fact, sun जब मरेगा या sun की लाइफ खत्म होगी, so then it will end up like a white dwarf. White dwarf. Okay, तो हम आज का डिस्कशन, नो पहले रेड जाइंट होगा, फिर रेड जाइंट होके वो उसकी शेल उड़ जाएगी और अंदर का जो लंप बचेगा इट विल एंड अप एज ए व्हाइट ड्वार्फ, जिसमें जैसे राहुल बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, एंड वो मतलब कि जो आउटवर्ड प्रेशर डालेंगे जब मतलब ग्रेविटी में खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ये आउटवर्ड प्रेशर बनेगा. इसको डीजेनरेसी प्रेशर पूरा कोलैप्स नहीं करेगा, पूरा कोलैप्स नहीं करेगा और व्हाइट ड्वार्फ नहीं बनेगा. ओके, तो मेरे ख्याल से आज क्योंकि 55 मिनट हो गए हैं, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. एक्चुअली फिजिक्स की बात ही ऐसी है कि जब आप डिस्कस करने लगते हैं टाइम जाते का पता नहीं चलता है. आई होप आप सबको टाइम इज रिलेटिव ना, ये भी टाइम इज रिलेटिव फंडा है. बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी. आई गॉट टू लर्न सो मच. बहुत कुछ नए इनसाइट्स मिले. एंड हमारी ऑडियंस भी बहुत एक्टिव ऑडियंस. इनफैक्ट
हाँ श्रद्धा क्या बोल रही हो? इनफैक्ट कुछ बचा भी है। हाँ तो हम मिलते रहेंगे फिर से इसी तरह से। आई थिंक 2 वीक्स में एक बार तो मिल सकते हैं। क्या लगता है राहुल, प्रीतम? 2 वीक्स में एक बार मिल सकते हैं, राइट? once in 2 weeks is good. हाँ 2 वीक्स में एक बार मिलेंगे, और मतलब हमारा पैनल भी चेंज होगा, डिपेंडिंग ऑन किसके पास यहाँ कितना टाइम है, और बाकी टॉपिक जो होंगे उनके एक्सपर्ट्स आएंगे हमारे पास फर्दर डिस्कशंस में, और इसी तरह से फन वे में हम लोग डिस्कशंस करते रहेंगे। तो अभी के लिए सबको, सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। थैंक्स। Yes. बाय बाय। Bye bye. Thank Thank you. Okay, bye. Bye.